or no in the comment section. All right. So let's start today's session without wasting any time. All right. So let's quickly see some of the prominent current affairs. Voice is fine, perfectly fine. All right. Exams वगैरह कैसे हुए आपके? Are you done with your half yearlies? Just say yes or no. What about the half yearlies? All right. That's nice. All right. तो अभी चल रहे हैं. All right. All right. That's nice. That's nice. Okay. So I really wish best of luck जिनके बच्चे हैं और जिनके ओवर हो गए हैं they can take a kind of a relief and should prepare further, right? Ultimately क्या है, पढ़ना ही है ना? तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत बिल्ड अ थ्रोन। आजकल आपको पता है दैट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज विकसित भारत। तो हमारा टारगेट है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट अ टारगेट दैट वी आर गोइंग टू बी विकसित भारत बाय 2047, राइट? फॉर दैट वी आर यू नो इनकलकेटिंग मेनी प्रोग्राम्स। तो उसमें से एक प्रोग्राम है विच इज a national-wide innovation program for all the students, right? So that they can build some, problem-solving skill, creative skill. Important बात यह है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार विकसित भारत बिल्डाथ्रॉन किसका इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव तो है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है या किस पर्टिकुलर बॉडी का इनिशिएटिव है? तो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग अंडर द प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, राइट? तो नीति आयोग का एक प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन, तो उसके अंदर विकसित भारत बिल्डाथ्रॉन आपका स्टार्ट किया गया है। एंड एज अ नेम सजेस्ट इट इज टू बिल्ड स्किल्स, स्किल सेट बिल्ड करना, इनोवेशन बिल्ड करना, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी वगैरह बिल्ड करना। तो दिस इज द मेजर एजेंडा, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर, व्हाट इज a mission, that is Atal Innovation Mission, right? तो आप देख सकते हो that program has 4 major themes, which includes vocal for local, which includes Atmanirbhar Bharat, which includes Swadeshi, and which includes Samriddhi. So majorly 4 themes are there. वो अगर मैं layman term में बोलूँ, its agenda is to build what? Indigenous, or I will say domestic production, domestic skills. So majorly Atmanirbhar, agenda, Swadeshi, right? Vocal for local. If you see all these terms, it is related to, building at the local level, right? So this point you have to remember. अब थोड़ा बात करते हैं what is was AIM mission. अगर मैं AIM mission की बात करूं, that is Atal Innovation Mission. Just a second. Yeah. So Atal Innovation Mission, as a name suggests, Atal Innovation Mission, आपने स्कूल्स में भी देखा होगा अटल लैब्स वगैरह बनाई जा रही हैं, है ना? दिस मिशन वाज स्टार्टेड अंडर नीति आयोग, राइट? नीति आयोग, so it's very important. नीति आयोग, as you all know, it is National Institute for Transforming India. National Institute for Transforming India. If I talk about in which year it was established in 2015, right?
So this point also you have to remember about the Niti Aayog. Niti Aayog was established in year 2013, right? If I talk about AIM mission, Atal Innovation Mission की अगर बात करें, तो Atal Innovation Mission was started in the year 2016. तो ये स्टार्ट हुआ 2016, ठीक है। और आइडिया क्या है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, द वर्ड सजेस्ट इनोवेशन, है ना। तो बेसिकली इनोवेशन and entrepreneurship. The agenda is to build innovation and entrepreneurship. Innovation and entrepreneurship. Right? So kindly write all these points. Right? You want to see previous slide? You can see previous slide also. Ministry of Education आ जाएगा. Ministry of Education. Right? All right. Is it fine? Should I move forward now? Kindly write yes or no in the comment section. Kindly write yes or no in the comment section. All right. So let's move forward. आगे चलते हैं. All right, Mehul, I will show you the previous slide. This is the first current affair, right? All those who have joined late, kindly just see the first slide and then I will move forward. This is the first topic of today, right? चलो आगे चलते हैं towards the next current affair, right? Now this is again related to defense technology, defense enhancement. So Indian Navy ने अभी induct किया है advanced anti-submarine vessel. Very important. Indian Navy's advanced anti-submarine vessel, right? So this is very important. Andurod. So you have to remember the name. So as you all know that India is building a defense capability. If you have seen yesterday's news, तो कल भी आपने देखा होगा हमने एक अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया है ना। कल भी आपने नोटिस किया होगा. So everywhere we are building our defense, you know. So Indian Navy ने अभी recently आपका yes exactly Agni Prime, बिल्कुल संदीप, right? Yesterday also we have did the testing. तो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, डोंट वरी. तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर आपकी अब इंडिया ने लॉन्च की है, जिसका नाम है अंदरूद. So you have to remember the name. In your exam, they will generally ask you about the names and all, right? अगर मैं बात करूं कहाँ से लॉन्च करी है, you know, where from which particular place they have, you know, launched this. So just a second. So you have to remember from Visakhapatnam. Visakhapatnam Indian Navy का ईस्टर्न कमांड भी है, right? तो from Visakhapatnam. अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया इज अ पेनिनसुला नेशन, as you all know, right? So India is a peninsula nation. और इंडिया में आपको पता होगा देयर इज अ स्टेट आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में एक जगह आती है विशाखापट्टनम, राइट? तो विशाखापट्टनम पोर्ट. और आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ना, ये इंडिया का मैन मेड पोर्ट. दिस इज अ मैन मेड पोर्ट. so this also you have to remember, right? तो यहीं से ये आपका लॉन्च किया है. अगर बात करें इंडियन नेवी की, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेवल डे? नेवल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और आगे से नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 4th of December, राइट? 4th December को हम सेलिब्रेट करते हैं नेवल डे, और आई विल से नेवी डे, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में याद रखना, इंडिया का एक मैनमेड पोर्ट है. कौन सी कोस्ट लाइन पे आता है?
ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे आता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। तो यहीं से आपको याद रखना है इंडिया सेकंड सबमरीन, राइट, दे हैव फाइनली टेस्टेड। ऑलराइट, चलें आगे। इज दिस फाइन? ऑलराइट, दैट्स नाइस। आ जाओ आगे। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन कर दो, कमेंट में यस सर कर दो, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने समझ लिया या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। अगेन इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। आयुष्मान भारत ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज हेल्थ सेक्टर लैंडस्केप। So this is very important. This is related to Ayushman Bharat, right? So as you all know that India has a scheme called as Ayushman Bharat scheme, right? So अभी रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है that it is transforming India's health sector, right? This point you have to remember. अब यहाँ पे ना बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम, है ना। तो इफ आई टॉक अबाउट आयुष्मान भारत विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 2018, 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये आज के टाइम पे ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सेक्टर स्कीम है, हेल्थ सेक्टर स्कीम है, जो कि बेसिकली जो लोग बीपीएल से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, इट प्रोवाइड 5 lakhs पर फैमिली ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। इनफैक्ट दिस स्कीम हैज बीन अबेंडेड। अब जो ओल्ड एज सिटीजन है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम 70 अबव, उनके लिए भी ये फास्ट ट्रैक हो गई है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम, राइट। तो आयुष्मान भारत स्कीम इंडिया ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट, आप बोल सकते हो, स्कीम, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। बीपीएल स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। So this is BPL. Is it fine or not? Kindly say yes or no. All right. Okay. Very good. Moving forward. Moving forward towards the next current affair. It is related to Brazil. हाँ, सोशल सेक्टर स्कीम बोल सकते हो या आप हेल्थ सेक्टर स्कीम बोल सकते हो बेटा। ऑलराइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ब्राजील। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया ब्राजील क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है एग्रीटेक, या आप इसे मैत्री 2.0 भी बोल सकते हो, वेयर फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो आजकल पता है इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपने एग्रीकल्चर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हम पल्सेस इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है ना। अब तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है जब से आप देख रहे हो, यू नो, एवर सिंस द यूएसए
जो आपका कर रहा है ना, टैरिफ एंड ऑल। सो उसके देखते हुए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैट वी शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर नेशन, राइट। तो बेसिकली क्या है, जो एग्रीटेक कोलैबोरेशन है इंडिया और ब्राजील का, दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू बूस्ट इनोवेशन, स्ट्रेंथ, कोलैबोरेशन फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, राइट, बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट मेत्री 2.0 क्या है। हालांकि आपको याद होगा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट मेत्री ड्यूरिंग माय डिफेंस एक्सरसाइज ऑल्सो। एक डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, उसका नाम भी मैत्री है, राइट। बट मैत्री 2.0 अगर आपसे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करता है, राइट, देन द आंसर इज ब्राजील, right? So this point you have to remember. Don't get confused. There is one Maitri military exercise also, but this exercise is conducted between India and Thailand. But when we talk about the agriculture, then it is India and Brazil. और कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, right? So this point you have to remember. All right? Is it fine? Kindly say yes or no. और चलो, अब थोड़ा बात करते हैं ब्राजील के ऊपर, क्योंकि ब्राजील न्यूज में तो रहता ही है ना। फुटबॉल की वजह से तो रहता ही है, उसके अलावा भी न्यूज में रहता है ना। इफ वी टॉक अबाउट ब्राजील, देन हाँ बेटा, मैत्री इज अ बेसिकली एक एक टाई अप हुआ है, आप ये समझ सकते हो, बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील रिलेटेड टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और मैत्री, मैंने आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी बताई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर। तो इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज आल्सो बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, राइट। चलो, अब थोड़ा बात करते हैं ब्राजील के बारे में। इफ यू सी ब्राजील, तो आप देखोगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़ा कंट्री है ब्राजील, राइट। तो ब्राजील आप देख सकते हो, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजीलियस इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू सी दिस अमेजोन, राइट, तो अमेजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं, वर्ल्ड, हाँ, लार्जेस्ट, या आप बोलो वर्ल्ड डेंसिएस्ट रिवर, जो सबसे ज्यादा वाटर फ्लो करता है, वर्ल्ड डेंसिएस्ट रिवर, तो उसका नाम भी अमेजोन है। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, तो अमेजोन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अमेजोन फॉरेस्ट इनफैक्ट आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ। अगर मैं अमेजोन फॉरेस्ट की बात करूं, दे आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं हम? तो हम बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, देयर इज वन प्लेस कॉल्ड एज साओ पोलो, है ना। ब्राजील में एक प्लेस है साओ पोलो, तो ये बेसिकली पोर्ट है, साओ पोलो पोर्ट। साओ पोलो पोर्ट इज फेमस फॉर कॉफी बिकॉज ब्राजील इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड कौन है? द आंसर इज, मतलब डेंसियस, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा वाटर क्वांटिटी वाइज फ्लो होता है। जैसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लेकिन वाटर क्वांटिटी उसमें इतनी नहीं होती जितनी अमेजोन में होती है, राइट। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ आई टॉक अबाउट ब्राजील करेंसी, अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं, तो ब्राजीलियन रियल इसकी करेंसी है। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। हाँ जी। तो कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है दुनिया का, अमेजोन रिवर,
अमेजोन फॉरेस्ट, साओ पोलो पोर्ट है जहां से सबसे ज्यादा कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्राजील, तो प्लीज राइट इट डाउन। उसके बाद आपने एक बहुत फेमस जगह का नाम भी सुना होगा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, दिस इज ऑल्सो इन ब्राजील, राइट? तो ये सारी बातें आपको याद रखें। यस यस, नेम सेम है मेहुल, अमेजोन ही नाम है, तो अमेजोन फॉरेस्ट भी ब्राजील, अमेजोन रिवर भी ब्राजील, राइट? चलें आगे। यस बेटा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है ब्राजील। ये जो मैंने आपको कॉन्टिनेंट शो करा है, दिस इज साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे जितने भी नेशन है ना, ऑल आर फेमस फॉर फुटबॉल, वेदर इट इज अर्जेंटीना, वेदर इट इज उरुग्वे, वेदर इट इज पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, है ना? तो दिस इज, इनफैक्ट ब्राजील में एक कोट भी बहुत यूज होता है, दैट व्हाट एजुकेशन इज फॉर इंडिया, फुटबॉल इज फॉर ब्राजील। मतलब वहां पे जनरली, जैसे इंडिया में एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी एंड ऑल, पर ब्राजील में लोग फुटबॉल खेलते हैं। मतलब देयर इज अ इमेंस क्रेज इन फॉर फुटबॉल इन ब्राजील, है ना? सर, क्रैप क्रैप कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्रासिलियस, ब्रासिलिया, राइट, इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। यस यस यस, तो मैंने लिख दिया है नीचे, इज इट विजिबल और नॉट, जस्ट टेल मी दैट द कैपिटल। करेंसी इज रियल, ब्राजीलियन रियल इज द करेंसी, राइट? काइंडली राइट yes or no in the comment section. Is it fine or not? Then we'll move forward. All right, all right. Okay, okay. Very good. Moving forward towards the next current affair. So kindly write all these points. They are important in context of Brazil and in context of our exams also. Right? REAL. Right? Brazilian real. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट, नेशनल आयुर्वेदा डे। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये डेज वाले उस पर लिखवाना था, पर कोई बात नहीं, आई हैव पुट इट है। तो आपने देखा होगा दैट इन सितंबर आई हैव टोल्ड यू मेनी डेज, नेशनल आयुर्वेदा डे, इसका 10th एडिशन हमने सेलिब्रेट करा इन 2025, राइट? कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन बेसिकली सेलिब्रेशन करा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राइट? तो इट इज इन गोवा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इट इज इन गोवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इस बार थीम क्या रखी गई, 2025 की थीम क्या रखी गई? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, राइट? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
तो काइंडली राइट इट डाउन। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली कौन से डे को सेलिब्रेट होता है, तो इट इज ऑन 23rd of September, राइट। तो 23rd of September वी सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे, है ना, क्लियर है। तो डेट भी याद रखना। तो नेशनल आयुर्वेदा डे, so it is dedicated to Lord धन्वंतरी, राइट। तो लॉर्ड धन्वंतरी से डेडिकेटेड है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। Alright, if I ask you who is called as the father of Ayurveda, right? If I ask you who is called as the father of Ayurveda, father of, तो याद रखना चरक। चरक, एक बुक भी आती है चरक संहिता, चरक संहिता इज अ फेमस बुक ऑल्सो। तो चरक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आयुर्वेद, राइट। तो प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये सब, एंड चरक वॉज one of the physician during the time of King Kanishk, राइट। कनिष्क किंग का नाम आपने सुना होगा, या कनिष्का बोल लो। तो उस कनिष्का के टाइम पे चरक वॉज वन ऑफ द फिजिशियन, और उनकी बुक थी उसी टाइम की लिखी हुई, चरक संहिता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो काइंडली राइट इट डाउन, देन वील मूव फॉरवर्ड। यस यस यस, चलें आगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आपको मैंने बता दिया, राइट। फादर ऑफ आयुर्वेद मैंने आपको बता दिया, राइट। चरक संहिता इज बेसिकली बुक। तो पुराने टाइम पे क्या होता था बेटा, ऐसे कोई मतलब वो तो होते नहीं थे, मतलब कंप्यूटर वगैरह रिसोर्सेज तो होती नहीं थी। तो बेसिकली जैसे सपोज करो मेरी कोई नॉलेज है, मैंने उसे नोट डाउन करके लिख दिया, तो दैट इज संहिता, राइट। यस, लक्ष्य देर देर कैन बी अ ब्रांच है, राइट। चलो आगे आते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट। माई वॉइस इज फाइन एवरीबडी, एम आई परफेक्टली ऑडिबल? हाँ हाँ बोल सकते हो मेहुल, आप बुक को ही बोल सकते हो, आप बुक ही समझो, है ना। तो नाउ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफ ह्यूमन राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है ह्यूमन राइट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करा है। दिस इज ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम इन सितंबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका एग्जाम नहीं होता तो मैं आपको भी कहता आप भी कर लो, इफ यू आर एलिजिबल, राइट। सो इट इज बेसिकली enhance the awareness in the youth. It will highlight the constitutional values, climate change, Ayurveda. So basically, it's a 2 week internship, right, from 22nd to 30th. अब तो ये निकल गई, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जिसने ऑनलाइन इंटर्नशिप स्टार्ट की है। तो आंसर इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब क्योंकि यहाँ पे बात हुई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट ओके, ह्यूमन राइट
जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन विच ईयर इट वाज established? So it was established in 1993, National Human Right Commission. So it's very important, National Human Rights Commission. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ओके टेल मी व्हेन डू वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट डे, आप ह्यूमन राइट डे कब मनाते हो? तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ह्यूमन राइट डे ऑन 10th of December, क्योंकि तो ह्यूमन राइट आजकल आप देखते हो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ह्यूमन राइट डे कब बनाते हैं? और यस यस यस, so human right day every year 10th of December. All right, let me check my internet connectivity. Now my voice is audible, now it is fine, although I'm taking the class from the same place जहाँ से मैं लेता हूँ, पर ठीक है, जहाँ से मैं हर बार क्लासेस लेता हूँ अपनी सारी, so I guess now it is fine. Kindly say yes or no in the comment section. At times there can be some internet issue, but I hope now it is fine. All right, very good. चलो, अगर मैं आपसे बात करूं कि यार जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द चेयरमैन ऑल्सो. तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, राइट? तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्या, he is the current chairperson of National Human Rights Commission. So this is again very important. Sorry. All right. So I have told you everything about National Human Rights Commission. इसके अलावा मैंने आपको इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम बता दिया, मैंने आपको बता दिया नेशनल ह्यूमन राइट डे कब बनाते हैं, मैंने आपको इसके चेयरपर्सन का नाम बता दिया, ठीक है? तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। जनरली पता है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनते हैं ना, तो उनकी एक एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप या तो एक्स चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जज हो, है ना? तो जनरली आप देखोगे जितने भी जस्टिस हैं वही आपके एक्स जस्टिस रहे हैं, वही आपके ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ बनते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? याद रखोगे तो काइंडली राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और तुम्हें पता है इसका टर्म कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर जो होता है उसका टर्म कितना होता है, तो इसका टर्म होता है 3 इयर्स का। और मैक्सिमम एज कब तक कोई जस्टिस रह सकता है, मतलब चेयरमैन से रह सकता है, तो इट इज 70 इयर्स। तो आप नोटिस करोगे जनरली इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वहां पे आपको 65 के बाद नहीं दिखेगी पोजीशन, पर यहाँ पर 70 इयर्स सिर्फ इसलिए है बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि जो एक्स जस्टिस होगा, मतलब जो रिटायर होगा उसके बाद वो चेयरपर्सन बनेगा। तो जनरली आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज हो तो आप 65 पे तो रिटायर ही करते हो, तो उसके बाद ही आप बन सकते हो, इसीलिए इसमें मैक्सिमम एज 70 है, राइट? तो मैंने आपको सारी बात बता दी, अब आप भूलोगे नहीं। मैंने आपको बता दिया कब अपॉइंट हुआ था, मैंने टर्म बता दिया, राइट? तो दिस पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है अपॉइंट कौन करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर के चेयरमैन को, तो जैसे ही सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो अपॉइंट करता है वही इन्हें भी अपॉइंट करता है। इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट, ठीक है? तो याद रखोगे जस्टिस वी रामा सुब्रमण्य, 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट डे होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया का बना था 1993 में बना था। जो चेयरपर्सन होता है उसका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, मैक्सिमम एज 70। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लास में ही याद करा, राइट? चलें आगे, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन।
Voice is fine, everybody. Everything is fine. Very good. All right. So everything is fine. Voice is fine. All right. I am also fine. आगे चलते हैं बिना किसी देरी। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिलेटेड टू ब्रो। ब्रो वो नहीं जिसे हम बोलते हैं। ब्रो स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपने देखा होगा जितने भी बॉर्डर स्टेट्स होते हैं वहां पे जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है वो करता है ब्रो। एक ऑर्गेनाइजेशन थी है इंडिया में ब्रो, जो कि 1960 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी इंडिया के बॉर्डर एरिया हैं या बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का डेवलपमेंट होता है, वो किस कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन ब्रो। अगर मैं बात करूं जो ब्रो है उसके वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सो इट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो इट्स कम अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी इसने प्रोजेक्ट विजय लॉन्च किया है, ठीक है, अपने 50th रेजिंग डे होता है जिस दिन ये स्टैब्लिश हुई। कहाँ पर लॉन्च करा है? कारगिल में। ठीक है। तो 2010 में पहले करा था, जो फर्स्ट था, तो 15 तो अभी होगा 2025, है ना? तो बेसिकली क्या है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उसके लिए बीआरओ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विजय। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बॉर्डर स्टेट्स की बात करूं, है ना, वाई देयर इज प्रोटेस्ट इन लद्दाख? हाँ, देयर मेनी रीजन। मिनिस्ट्री का रोल ये होता है बेटा, मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है। हाँ बेटा, देयर इज यू नो प्रोटेस्ट इन लद्दाख, ऑल्दो आई विल टेल यू इन द डिटेल, बट अभी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एवर सिंस लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी, 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया था, तो उसके बाद से क्या हुआ, सारी पावर्स जो है सेंटर के पास आ गई, है ना? अब जब सारी पावर सेंटर के पास आ गई, तो लद्दाख इज सेइंग दैट they are not getting enough rights, क्योंकि आपको पता है लद्दाख एक ट्राइबल स्टेट है। अब ट्राइबल स्टेट के अपने कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, है ना? तो दे आर सेइंग कि हमें आप शेड्यूल 6 में इंट्रोड्यूस कर दो। शेड्यूल 6 में स्पेशल ट्राइबल प्रोविजन होता है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का प्रोविजन होता है, राइट? तो दैट्स वाई एवर सिंस लास्ट टू लास्ट ईयर से, पिछले 1 1.5 साल से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? अब आके ये पता चला है कि वो प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो गया, तो दैट्स व्हाई इट वाज देयर इन द न्यूज। तो इस पे बात करते हैं, मैं आगे एक डिटेल में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हाँ भाई, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो दिस इज ऑल। अब मैंने यहाँ पे आपको ग्रो के बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर स्टेट शेयर करते हैं, कौन कौन सा स्टेट है इंडिया के जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो हमारा हिमाचल प्रदेश शेयर करता है, उत्तराखंड शेयर करता है, राइट? तो सिक्किम शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम शेयर करता है चाइना के साथ, राइट? अरुणाचल शेयर करता है, राइट? तो ये स्टेट्स आपके चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है? चाइना के साथ याद रखना लद्दाख भी शेयर करता है, पर लद्दाख हम यूटी बोलेंगे, स्टेट नहीं, यूटी लद्दाख, ठीक है? तो ये भी शेयर करता है। अगर मैं बात करूं आपसे पाकिस्तान के साथ कौन से इंडिया के स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो यूटी जम्मू कश्मीर शेयर करता है, उसके बाद आपका पंजाब शेयर करता है, क्योंकि ये सारे स्टेट अभी आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सब में कर्फ्यू लग गया था, राइट? उसके बाद आपका राजस्थान शेयर करता है, उसके बाद आपका गुजरात शेयर करता है। तो दीज आर द स्टेट दैट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन्हीं एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में काफी डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड ऑल,
आप देखो लद्दाख में काफी बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। वो इसीलिए हो रही है ताकि भाई अ- हमारा हॉस्टाइल नेबर्स है। अब हॉस्टाइल नेबर्स को आपको किसी तरह से तो कंट्रोल में रखना होगा, है ना। वी हैव टू आल्सो डेवलप आवर बॉर्डर एरियाज, so that's why we are doing it. All right, so kindly say yes or no in the comment section if this is fine. जो मैंने आपको आगे पीछे की बातें बताई, is it okay or not? Kindly say yes or no in this one. All right. Yes, yes, yes. चलो आगे चलते हैं। सर JNK लद्दाख अलग अलग यूटीज हैं। यस आदित्य, 2019 में जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, उसके बाद दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया था JNK स्टेट। एक तो लद्दाख एंड कारगिल एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ इंटरपोल एशिया कमिटी टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरपोल। तो इंटरपोल एक तरीके से इंटरनेशनल पुलिसिंग सिस्टम है ना। तो दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस, आप बोल सकते हैं। तो इंटरपोल आपको 1923 में आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे स्टैब्लिश हुई। अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से इंटरपोल में कौन रिप्रेजेंटेशन करता है, तो अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं तो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है CBI। CBI रिप्रेजेंट करती है इंडिया इन इंटरपोल, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है, इंटरपोल में CBI रिप्रेजेंट करती है। अभी इंडिया क्या बना है, इंडिया बन गया है मेंबर ऑफ इंटरपोल एशिया कमेटी। जो इंटरपोल की एशिया कमेटी है, रीजनल कमेटी है, उसका मेंबर बन गया है इंडिया। तो इंडिया हैज इलेक्टेड एज द इंटरपोल एशिया कमेटी, जो कि कहाँ पर हुई थी उसकी 25th कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में। तो वहां पे वोट वोट करके इंडिया को जो है इंटरपोल की एक तरीके से मेंबरशिप मिल गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की एक तरीके से डिप्लोमेटिक, आप बोल सकते हो, टाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल मैंने आपको बता दिया एक इंटरनेशनल पुलिसिंग सिस्टम है, राइट। अगर क्वेश्चन आता है इंटरपोल में, यू नो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया की एक पुलिस है, CBI, एक मतलब बॉडी है CBI, वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर मैं बात करूं कब स्टैब्लिश हुआ था इंटरपोल, इंटरपोल स्टैब्लिश हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, एक जगह है लियोन फ्रांस में। तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। सारी बातें क्लियर है। हाँ, CBI की फुल फॉर्म है बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में जितने भी करप्शन वगैरह इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, उसमें CBI मेजर रोल प्ले करती है। तो आपको याद रखना है। ये 1946 में बनी थी, ठीक है। दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी थी CBI पहले। तो ये बात आपको याद, इज इट फाइन और नॉट? काइंडली से yes or no in the comment section. Yes.
वेरी गुड। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कुछ भी कर दो, सो दैट आई गेट अ फीलिंग दैट ऑल ऑफ यू आर एंगेज्ड एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे चलते। ठीक है राजस, सीबीआई की फुल फॉर्म क्लियर है? ऑलराइट ऑलराइट। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी पे। यूटी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे आते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। आदि कर्मयोगी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि कर्मयोगी अभियान अभी, आदि कर्मयोगी अभियान हमारा स्टार्ट होने वाला है किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के थ्रू, है ना, और टुगेदर विद यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। तो ये बेसिकली एक आदि युवा फेलोशिप प्रोग्राम है। अब ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है बिकॉज ये इंडिया में ट्राइबल्स के लिए है। तो बेसिकली ट्राइबल डेवलपमेंट करो, ट्राइबल्स में यू नो बेसिकली वॉलेंट्री वोकेशनल एजुकेशन कराओ, वो सब करो, है ना। तो आदि योगी प्रोग्राम रखा है ना। तो आदि कर्मयोगी अभियान वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट इनिशिएटिव है जो इंडिया में शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? 15 नवंबर से शुरू होगा। आप बोलोगे सर 15 नवंबर से ही शुरू क्यों होगा? तो एक ट्राइबल गॉड आप बोल सकते हो जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, राइट। एक हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक रिवोल्ट भी हुआ था 1899 में जिसे हम बोलते हैं मुंडा रिवोल्ट। और ये मुंडा रिवोल्ट हुआ था बेटा कहाँ पे? जो आज का आप झारखंड बिहार ये वाला रीजन देखते हो। तो जो बिरसा मुंडा जी हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइजेशन है। मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ही इज लाइक अ गॉड फिगर। तो उनका बर्थडे होता है 15 नवंबर को। इसीलिए हम 15 नवंबर को जनजातीय दिवस भी मनाते हैं। जनजातीय, बेसिकली ट्राइबल। जनजातीय दिवस कब मनाते हैं हम? 15 नवंबर को। इनफैक्ट जो झारखंड का एयरपोर्ट है ना, उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और उसी दिन हम आप क्या कर रहे हैं? आदि कर्म योगी अभियान। तो अभी सारी बात आप याद रखोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होगा यहाँ पे। तो काइंडली राइट दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट, काइंडली post your doubt. If you don't have doubt, then kindly write what all information I have. Once it is fine, then I will move. Yes, yes, yes. चले, वेरी गुड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना। हाँ, बिरसा मुंडा, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश टाइम में 1899 टाइम पे एक बहुत फेमस रिवोल्ट हुई थी, इसका नाम था मुंडा रिवोल्ट। तो मतलब जितनी भी हमारे इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, मेजरली आप देखोगे ज्यादातर आपको एमपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे मिलेगी। तो ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन द ट्राइबल कम्युनिटी। इनफैक्ट इन स्टेट लाइक झारखंड ही इज कंसिडर एज गॉड, राइट। तो उनका बर्थडे होता है 15 नवंबर को। इसीलिए हम मनाते हैं उस दिन ट्राइबल डे या जनजातीय दिवस, राइट। तो बिरसा मुंडा वो, मतलब वहां उनसे इंस्पायर होके हमने प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है लक्ष्यता, कोई इशू तो नहीं है बेटा? इज इट फाइन? हाँ, ग्रास रूट होता है लोकल लेवल पर जाके। ग्रास रूट जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज डेवलपिंग टुवर्ड्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब आप लोकल लेवल पर जाकर काम करते हो, ग्रास रूट पर जाकर काम करते हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो उन्हें गॉड लाइक कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने बोला भाई सबका अपना अपना है। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट नेशनल ई गवर्नेंस समिट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है इस तरह की समिट बहुत पूछी जाती हैं। तो अभी 2020, 20
28th नेशनल ई गवर्नेंस समिट हुई है 2025। किसने होस्ट किया है इसे? विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है। तो अभी मैंने आपको विशाखापट्टनम के फीचर्स बताए थे, जहाँ पे मैंने अनुरोध बताया आपको, एंटी सबमरीन लॉन्च हुई, और विशाखापट्टनम में ही हो रही है नेशनल ई गवर्नेंस समिट। तो बेसिकली ई गवर्नेंस वर्ड क्या है? जो कि आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। तो ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। थीम क्या है इसकी? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में बस इतना आएगा, नेशनल ई गवर्नेंस समिट बताओ कहाँ पे हुई है, आंसर आएगा विशाखा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। जितनी भी मेजर समिट हो रही है इंडिया नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट, उसमें आपको मेजरली प्लेसेस याद रखने हैं। तो वो प्लेसेस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो काइंडली राइट दीज पॉइंट। वंस इट इज फाइन, then please let me know. I will go for. Yes, yes. बेटा। चलें आगे। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। All right, I hope you can note that down. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट डेज। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट डेज में आपका सबसे पहले बात करते हैं 16 सितंबर को एक डे होता है, दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे। तो आपको पता है हमारे अर्थ है, तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, तो आपने एटमॉस्फेयर बचपन में पढ़ा होगा इन जूनियर क्लासेस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट 2-3 लेयर्स। तो सबसे पहली लेयर का क्या नाम होता है? ट्रोपोस्फेयर। देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर। तो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर। So when we talk about stratosphere, at stratosphere only there is something called as ozone, O3, ozone. There is one scale जिसे हम बोलते हैं डॉप्सन मीटर। तो याद रखना, डॉप्सन मीटर जो होता है वो मेजर करता है ओजोन। ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, और ओजोन हमें, हमारे अर्थ को, आप बोल सकते हो वो बचाता है किससे? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट। राइट। तो वो सन से आती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोलोगे सर 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हम? बेटा, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है ना O2, ऐसे ओजोन का होता है O3, इसलिए मैंने O3 लिखा है ना। जैसे H2O होता है ना तो O3 बोलते हैं ओजोन। राइट, याद रखोगे ये बात। चलो। ऑलराइट, ऑलराइट। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओजोन डे 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। बिकॉज 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था?
एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कनाडा। तो यहाँ पे ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से एक वर्ल्ड में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, राइट। और 1994 से एवरी ईयर हम ओजोन डे बनाते, क्लियर है। तो मॉन्ट्रियल, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन प्रोटेक्शन, राइट। So kindly write all these points in the comment section. Once it is fine, then I will move forward. चलें आगे। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो आप देख रहे हो 21 सितंबर का मैं नटशेल में बताऊं तो 8 सितंबर, उसके बाद आपका 15 सितंबर, उससे पहले आपको 14 सितंबर, फिर 16 सितंबर, और अब 21 सितंबर और 23 सितंबर। देख रहे हो कितने सारे डेज हो गए। एक साथ रिवाइज कर देते हैं सारे। कुछ मैंने पहले बताए थे, कुछ मैंने आज बताए हैं। 8 को बताया था मैंने इंटरनेशनल लिटरेसी, फिर बताया था मैंने डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी। 14 को होता है नेशनल हिंदी डे, 16 को हो गया ओजोन डे, और अब 21 को आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और 23 को मैंने आपको बताया आयुर्वेदा। देख रहे हो सारे एक साथ लाइन से याद हो गए। तो जैसे मुझे याद है ऐसे आप भी याद कर लो, बहुत इजी है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमारे डेज के आएंगे और आप एकदम कर दोगे फिर उन्हें, ठीक है। तो अब जैसे आपने देखा होगा मैंने ओजोन पे बहुत इंफेसाइज किया था, है ना। मैंने आपको सब बताया ओजोन डे में, है ना। क्यों बताया मैंने, क्योंकि ओजोन डे इज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन। एनवायरमेंट वाले डेज बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसे इम्फेसाइज, राइट। तो जो भी ऐसी न्यूज होगी, बेसिकली करंट अफेयर्स में क्या है, करंट अफेयर में कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो प्रोग्रेसिव होती है। आपने नोटिस करा जितने भी मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ, किसी भी करंट अफेयर्स में ऐसा होता है रॉइट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसे नहीं कराते ना, बिकॉज वो एग्जाम में आते नहीं। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, एग्जामिनर कोई भी ऐसी न्यूज पूछेगा नेशनल इंटरनेशनल यू नो लेवल की, जो कि प्रोग्रेस शो करे। अब चाहे वो एजुकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, राइट, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, राइट, अवेयरनेस हो, इजंट इट। तो इसलिए इस तरह की करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को होता है। ऑब्वियसली जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने इंटरनेशनल नॉन वायलेंस की बात करी थी, इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर पीस बनाते हैं, राइट। पर आपको बस इसका डे याद रखना और कुछ याद, क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर कर दो। वंस इट इज फाइन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू राउंड, ठीक है। फिर हम एमसीक्यू राउंड पे आ जाएंगे जब इतना हो जाएगा। काइंडली से यस और नो। वेरी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मैंने आपको नेट शेल में सितंबर का रिवाइज भी करा दिया, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं हो। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करेक्ट। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे बेटा 15 सितंबर को, हालांकि इंजीनियर्स डे भी होता है।
राइट, आ जाओ आगे। अब थोड़ा एमसीक्यू देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलें। चलो अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज मैथी। अभी मैंने आपको बताया था मैत्री 2.0 एग्रीकल्चर की किसके साथ हुई है, तो वो हुई है बेटा ब्राजील के साथ। लेकिन एक्सरसाइज मैत्री जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ करी है इंडिया ने, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखा था आज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इट इज विद थाईलैंड, राइट। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि थाईलैंड इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। सेकंड आपको याद रखना है थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी कैपिटल क्या है, बैंकॉक। इसकी करेंसी क्या है, बात, बात इज दी करेंसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं रबर प्रोडक्शन, तो थाईलैंड में होता है काफी, तो ये भी ध्यान रखना आपको, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैत्री एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। क्लियर है, चलें आगे। बोलो जल्दी से यस और नो। बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, आज 5 ही एमसीक्यू हैं, आई विल लीव यू वर्ल्ड, राइट। कंसीडर टाइम, आज हमारा पहले हो जाएगा कंटेंट, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मिशन मौसम, नाम में ही पता चल रहा है मिशन मौसम। तो मौसम किसके लिए है बेसिकली, एनवायरनमेंट के लिए है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है। मौसम डिजास्टर प्रिडिक्ट करने के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, राइट। तो मिशन मौसम इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ये है, मिशन मौसम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिशन मौसम। तो दिस मिशन इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, याद रखोगे। काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब क्योंकि बात हुई है अर्थ, अगर मैं बात करूं 2025 वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, 2025 वर्ल्ड अर्थ डे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट 2025 वर्ल्ड अर्थ डे। तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। अगर मैं बात करूं 2025 की थीम क्या रही थी, राइट, इफ आई टोल्ड यू अबाउट द थीम, आर पावर आर प्लान, तो आर पावर आर प्लैनेट इज द थीम ऑफ 2025 अर्थ डे। तो अर्थ साइंस की बात हुई है, तो यहां से आपको अर्थ डे भी पता होना चाहिए, प्लस थीम भी पता होना, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नो लास्ट लास्ट 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस, लास्ट 3 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बायो E3 पॉलिसी इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी विद थ्री, विच थ्री पिलर्स, है ना। तो बायो E3, तो आप मुझे बताओ जरा कौन से हैं E3 पिलर्स। हालांकि आप देखोगे, हाँ, बायो E3 में आप क्या क्या देखते हो, व्हाट आर द E3 इन द बायो, यस, इज इट एनर्जी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट, नो, इज इट इकोनॉमी एनवायरनमेंट,
अब देखो पता है ऐसे क्वेश्चन में ना आप कॉमन सेंस से कर देते हो। देखो कोई भी पॉलिसी होगी बायोटेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी तो करेगी, बिकॉज बिना इकोनॉमी के तो कुछ होगा ही नहीं। और मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट इतना हॉट इशू है, तो इकोनॉमी होगी, एनवायरनमेंट तो होगा ही, है ना। अब तीसरा देखना है, तो कोई और है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट वाला, है ना। तो हमारे पास इकोनॉमी एनवायरनमेंट एजुकेशन है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट एम्पावरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। तो यार इसमें ये भी तो कोशिश होगी जॉब जनरेट हो, तो आंसर क्या होगा, सी, इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो E3 बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो इकोनॉमी से, इकोनॉमी अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट, अब बायो है तो एनवायरनमेंट तो अच्छा हो गई, तो एनवायरनमेंट तो आना ही है। अब इकोनॉमी अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो। तो ऐसे याद कर सकते, ठीक है, यू कैन मेक योर ओन राइट। तो E3 इनिशिएटिव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी बातें ना आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। जैसे सपोज करो इंटरव्यू में जब आप बात करते हो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस तरह की बातें, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करोगे। सर वे आर मूविंग टुवर्ड्स E3 इनिशिएटिव, वेयर वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी, है ना। तो मतलब सुनने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ यार पढ़ के आया, कुछ सिंपल इंग्लिश नहीं बोल रहा, राइट। तो ये जब सपोज, क्योंकि आपने देखा इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है, वेदर यू आर ट्राइंग फॉर IPM, है ना, वेदर सिम्बायोसिस क्राइस्ट, हर जगह आपका इंटरव्यू होने वाला है ना। तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है, तो ये सारे वर्ड्स कोशिश करा करो आप ऐसे ही रेप्लिकेट करो, दे विल हेल्प यू अलॉट, राइट। करंट अफेयर का तो पार्ट है ही, प्लस आपके वोकैबुलरी में बिल्ड होना चाहिए। चलो खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद इरफान अली। अभी बेटा एक री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, ठीक है, तो नाम है मोहम्मद इरफान अली। आप मुझे बताओ कि वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ठीक है, जल्दी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इज इट फ्रॉम कोलंबिया, गुयाना, पेरू, उरुग्वे, जल्दी बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कंट्री है बेटा जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन कैपिटल है। तो जॉर्ज टाउन किसकी कैपिटल है, उरुग्वे की है, नहीं उरुग्वे की तो असेंशन है। पेरू की है, नहीं पेरू की तो लीमा है ना। कोलंबिया की है, नहीं कोलंबिया की तो बगोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुयाना, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, है ना। और इसकी करेंसी क्या है, बहुत सिंपल है, गुयानीज डॉलर। मुझे ऐसी कंट्रीज बढ़िया लगती है जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता और डॉलर लगा देती है, जैसे सिंगापुर, सिंगापुरी डॉलर, है ना। तो याद रखना है। और अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मोहम्मद इरफान अली, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, ये साउथ अमेरिका में आता है। और वैसे भी आप कॉमन सेंस देखोगे ना, सारे ऑप्शन साउथ अमेरिका के नेशंस के, है ना, पैरागुए, कोलंबिया, तो ये सब याद है। क्लियर है, जल्दी बोलो यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ दिस इज फाइन देन आई विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन है, कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है, वेयर इज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, राइट। तो कहाँ पे हुआ है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, राइट। तो ग्लोबल लेवल पे साइंस और इन सबको प्रमोट करना था, ठीक है। तो 2025 का ओलंपियाड ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अर्थ साइंस ओलंपियाड ये हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जहां पर ये होस्ट हुआ है। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज नॉट नेबरिंग, जापान इज नॉट नेबरिंग, इंडोनेशिया इज नॉट नेबरिंग, बस यस चाइना इज नेबरिंग। तो चाइना में होस्ट हुआ है
18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। तो 2025 का इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड इज इन चाइना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चाइना की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? इट इज युआन, राइट? तो युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना। ठीक है, कैपिटल सबको पता होगा बीजिंग। अभी आपको पता होगा 2025 की जो एससीओ समिट है, एससीओ समिट, वो भी किसने होस्ट करी थी? होस्टेड बाय चाइना। तो ये सारी कहानी आपको क्या रखनी है? याद रखनी, राइट? So this is all from my side today. Now I will not take any new topic. If you are having any doubt for next 10 minutes, I will, rectify your doubts. तो जिन्हें डाउट है वो रुक जाए। सर व्हाट इज एससीओ समिट? एससीओ समिट हुई थी विच इज रिलेटेड टू बेटा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू, तो ये एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, ठीक है, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चाइना ने होस्ट करी है 2025 की, ये भी आ गई। ठीक है, तो मैंने एक साथ में आपको बताया। ऑलराइट, नाउ if you have any doubt, you can ask your doubt. Those who don't have doubt, they can easily leave the class and prepare for tomorrow. So those who have doubt, they can ask your doubt. They ask their doubt. Rest can be. This is all from my side. Then what is the objective of the summit? RF generally such summit, they are basically the intergovernmental summits. तो basically ये डिफेंस मिलिट्री ये सब की टाइप्स की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं 2025 की स्पेसिफिक समिट का बात करूं, तो इस बार इन्होंने टेररिज्म को टारगेट किया है कि दैट वी ऑल शुड कंडेम टेररिज्म, है ना? तो इस तरह से है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली जब आपका बना था, तो इसका आइडिया ये था कि सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना आइडिया था इसका, राइट? तो ऑल द पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। एनीथिंग एल्स बेटा? If you have any doubt, you can ask your doubt. All right, it seems you don't have any doubt. Take care of yourself, everybody. Good luck and